Hello students, welcome back to another video of revision. So from the today's we are going to start our revisions. So Saraswati Shishukunj Bhagwala welcomes you and we are going with the chapter number 13 and that is why do we fall ill. So in the introductory let me talk about the health. So the health is the state of the complete physical, mental and the social well-being, that is known as the health. So what are the factor for the good health? So we can talk about the what are the basic condition for the good health. So first of all we have to take the proper balance and nutritious diet. देन आफ्टर क्लीन एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग, जैसे कि मान लेते कि हमारे आसपास में जो कुछ भी हमारा जो एनवायरनमेंट जो होता है वो कैसा होना चाहिए, तो एकदम क्लीन होना चाहिए, ठीक है. और थर्ड पॉइंट दैट इज़ द पर्सनल हाइजीन. देन द फोर्थ पॉइंट दैट द प्रॉपर रेस्ट, ठीक है, मतलब कि पूरा दिन जो भी काम करते हो उसके बाद हमारा एक प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए. कि अगर मान लो कि आप स्टूडेंट हो तो कम से कम आपको 6 to 8 आवर्स की आपको मतलब कि रेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है. सो दैट इज़ दी नोन एज द प्रॉपर रेस्ट. देन रेगुलर एक्सरसाइज, यस, सो डोंट फॉरगेट टू डू एक्सरसाइज, सो डू एक्सरसाइज रेगुलरली. देन द सिक्स्थ पॉइंट दैट इज दी healthy air, no pollution in the surrounding, and then after the seventh condition that is the good standard of the living and economic status. So that are the basic condition for the good health. So according to the doctors, what is the disease? So disease is the nothing but the when the body is not at ease, that means the body is not compatible, then it is said to be have a disease. So when there is a disease, the functions or the appearance of one more system of the body change. Depending on the duration, disease is classified into the two types. That means कि अगर duration, that means कि अगर हमको disease किस ड्यूरेशन में होता है, तुरंत होता है या तो फिर होके चला जाता है, या तो फिर हमको डिजीज़ होता है लेकिन हमें पता भी नहीं चलता, शायद एक मंथ के बाद या तो फिर एक साल के बाद पता चलता है. दैट मीन्स द ड्यूरेशन. ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन द डिजीज आर क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स. देन द फर्स्ट टाइप दैट इज एक्यूट डिजीज, while as the second type that is known as the chronic disease. So in the acute disease we can say that the disease that lasts for only short period of the time, that is known as the acute disease, while the chronic disease that is the disease that lasts for the long time. So if we talk about the acute disease, so it doesn't have any major effect on our body, while as the chronic disease it affects the body drastically. And the acute disease, there is the example that is a headache, common cold. Then the chronic disease like elephantiasis or tuberculosis, so that are known as the acute disease. Now we are going forward that is cause of the disease. Okay, तो मतलब ये सारे के सारे जो disease हमको होते हैं वो cause कैसे होते हैं. So causes of the disease are of the two type. That the first type that is the immediate cause. So what is the immediate cause? The organism that enter our body and cause disease is called immediate cause. As per example virus, bacteria, protozoa, that are known as the immediate cause. That means कि suppose like rhinovirus, that is the virus of the common cold, if they are enter into our body that causes the disease immediately, like we getting the cold. Okay, so that is known as the immediate cause. Okay, then after we talk about the another one that is the contributory cause. So that secondary factor which lead this organism enter our body, that is known as the contributory cause. Okay, that means ये जो डिजीज़ है वो सेकेंडरी फैक्टर थ्रू हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर होता है. दैट मीन्स एज पर एग्जांपल डर्टी वाटर है, अनहेल्दी सराउंडिंग, कंटामिनेटेड फूड है, इनप्रॉपर न्यूरिशमेंट, पॉवर्टी, poor standard of the living, etc. So there are so many reason of the secondary factor they leads this organism enter our body and causes a disease, and that type of the disease caused by that is known as the contributory causes. Then after we have to talk about the disease made due to the infectious and the non-infectious causes. Okay, so like ये suppose कि हमें सर्दी होती है, that is like a कोल्ड जो हम कहते हैं, ठीक है, कि अगर जो सर्दी रहती है हमको तो वो क्या होता है, दैट इज इन्फेक्शियस.
कि लाइक अभी हमारे आसपास में जो भी है, हम जिसके भी कांटेक्ट में आते हैं उन सारे लोगों को हम सर्दी कर देते हैं, तो दैट इज नोन एज द इन्फेक्शियस डिजीज। और सम डिजीज ऐसे होते हैं जो कोई भी टाइप के इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होते हैं। So as per example, what is the infectious causes? The disease where microbes are the immediate cause are called infectious disease. Okay, as per the infectious spread from the one person to another person, as I told you. Okay, so उसके अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं तो मलेरिया जो होता है, कॉलेरा जो है, फूड पॉइजनिंग, कोरोना, ओके, जो अभी रिसेंटली चल रहा है कि अगर आप किसी भी पर्सन जो ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव है या तो फिर उसके अंदर कोरोना का वायरस है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हो तो वही कोविड-19 का जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो आपको भी हो सकता है। सो दैट आर नोन एज द इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट द नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज। तो सम डिजीज दैट डू नॉट स्प्रेड इन द कम्युनिटी, ओके, बट रिमेन इंटरनल आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। दैट मीन्स कि अगर मुझको कोई मुझे अभी कोई डिजीज़ मान लो कि है भी, तो भी अगर आप मेरे कांटेक्ट में आते हो तो कांटेक्ट से वो स्प्रेड आपके अंदर नहीं होगा, एंड दैट डिजीज लाइक नोन एज द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इफ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, देन देयर आर द एग्जांपल, दैट इज द कैंसर, genetic abnormalities, high blood pressure, etc. So they all are known as the non-infectious causes. Then after we are going to talking about the infectious disease. So what is the infectious disease? That is known as the communicable disease. Okay, so when a disease organism enter our body, causes the infections, it multiply and grow in our body, or we can say that grow in the body of the host. सो व्हाट इज़ दी होस्ट? बेसिकली होस्ट क्या होता है कि सपोज कि कोई भी एक वायरस है, अभी जो रिसेंटली चल रहा है, बात कर लेते हैं हम कोरोना वायरस की। ओके, सो दैट कोरोना वायरस दैट एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी। ओके, जैसे भी वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है, जैसे कि हमने यूनिट नंबर 5 के जो वीडियो में हमने बात किया था कि लाइक कोई भी जो वायरस जो होता है वो टोटली इनएक्टिव होता है कि जब तक वो किसी होस्ट बॉडी में या तो फिर किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर नहीं होता, तब तक के लिए वो कैसा रहेगा? इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, सो होस्ट बॉडी दैट मीन्स कि जिसके अंदर जो वो ये जो वायरस है वो जाता है, दैट बॉडी दैट इज नोन एज दी होस्ट बॉडी, और उसका जो सेल मशीनरी है उसका वो यूज़ करेगा फॉर दी मल्टीप्लाइज। ओके, कि मतलब कि और ग्रो होने के लिए वो जो बॉडी का जो मशीनरीज है उसका यूज़ करेगा, एंड दैट मशीनरी दैट बॉडी दैट इज नोन एज दी होस्ट बॉडी। देन सपोज उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो जब बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, तो कि ट्यूबरकुलोसिस जो है, टिटेनस है, टाइफाइड है, कॉलेरा है, दैट कैन बी कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वायरस, देन द एड्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, रैबीज, measles. Okay, so that are the examples that is caused by the virus. And if you talk about the fungi, then you can see like this, so many people are suffering from this skin disease, that food poisoning. So that is because of the fungi. Then the protozoan, that is the malaria, amoebiasis, काला अजहर। ओके, सो दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटोजोआन। सो फंजी जो है दैट मीन्स दैट कॉजेज द स्किन डिजीज एंड द फूड पॉइजनिंग। इसीलिए आपको आपके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा बाहर का मत खाओ, बिकॉज ऑफ इट कंटेन द फंजी, एंड ड्यू टू द फंजी वी कैन सफरिंग फ्रॉम द फूड पॉइजनिंग, एंड ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग इट विल finally on the observation of the death. So that is the reason that our parents has told us that the don't eat any outside food. Okay, so then after we are going to talking about the worm. So worm causes the filariasis. So that are the examples of the communicable disease, infectious disease by spread by the bacteria, virus, fungi, protozoa, or we can say about the worms. So now we are talking about the infectious disease spread through, कि मतलब कि ये जो infectious disease जो है वो spread तो होते हैं, लेकिन किससे होते हैं? So we can say that it can be spread by the air. So in the we are talking about the air. So it causes the airborne disease due to the bacteria, virus. As per example, common cold, influenza, measles, tuberculosis. So there are the examples of the causes of this disease by the air. So these are the example that the common cold, influenza,
measles, tuberculosis that are caused by the air. Now, if we talk about the next infections through the, like it is a infectious disease spread through the food and the water. So by the food and the water, it caused due to the contaminated food. Which food? That means contaminated food. Now what is the contaminated food? Like we can say that कि अभी हमारे घर के अंदर मान लो कि कुछ कोई भी फूड है, ऐसा मान लो कि हमने उसको खुला छोड़ दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, उसके ऊपर कंटामिनेशन हो जाएगा. दैट मीन्स कि उसके ऊपर लाइक फंजी आ जाएगी और कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, कुछ ना कुछ वायरसेस वहाँ पर अटैक करेंगे. एंड दैट फूड that is full of the virus, bacteria, fungi, and that kind of the food that is known as the contaminated food. Okay, now and the water are containing the bacteria, virus, worm, etc., and due to that is the reason we can get the disease, or we can say that the infectious disease can spread through the waters and the food. Okay, so as we know about the bacteria, what bacteria causes? So bacteria causes the tuberculosis, tetanus, typhoid, cholera. Then we have already talked about the virus, that the virus cause the due to the virus we can have to it may be AIDS, polio, chickenpox, rabies, measles. Then we can say that like it may be the corona. So you can fit this example anywhere because the corona is because of the virus. So in the example of the virus you can say about the corona. Then after we have talked about the contact. Okay, so infectious disease may spread through the contact. In the contact we can say that the many disease spread by the contact of the if infected person with the healthy persons. मतलब कि कभी ना कभी ऐसा होता है कि अभी जैसे कि अभी हमने बात किया कि जो फूड और जो वाटर होता है उसका एग्जांपल रह गया था, दैट इज कॉलेरा, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस. ओके, देन आफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टैक्ट. सो कॉन्टैक्ट से ये जो डिजीज जो होते हैं वो कैसे स्प्रेड होते हैं? सो वी कैन से दैट द मैनी डिजीज स्प्रेड बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन विद द हेल्दी पर्सन्स. सपोज कि अभी हमने जैसे कि बात किया है कोरोना का एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है. मतलब कि बच्चों होता क्या है कि अब मानो लो कि कोई ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन है और आप उस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हो. सो क्या होगा, उसके जो ड्रॉपलेट्स के जो थ्रू उसके जो वायरस निकलेंगे वो वायरस आपके कांटेक्ट में आएंगे. And due to that is the reason if you are healthy but you will get the viruses, and due to that contact you will be infected by that virus, and due to that the virus you will get that disease. Okay, so that by the means of this we can say that if the healthy person is contacted with the unhealthy person it will get this disease. So if we talk about the examples, so fungal infections, scabies, etc., AIDS and the syphilis spread due to the sexual contact. Okay, so that are the disease that may spread with the contact. Then after we have to talk about the another way by which that the infectious disease can spread through, that is the body fluids. So how can we say that the disease can spread through the body fluid? So suppose body fluid like blood, semen, mother milk when infected can also causes the disease. If there is a small child and the mother milk is infected, so during that feeding that children or that little one boy or baby girl or whatever, it may be infected because of the mother milk that is infected. So we can say that by the body fluid the person can be infected and the infectious disease can spread through this body fluid also. So that kind of the mother milk when infected can also causes the disease. So as per example AIDS. Okay, so now we are going forward with our next topic, and that is the antibiotics. So what is the antibiotics? So that these are the chemical, that means the medical medicines, or we can say that the drugs. So and the first thing but you must have to remember that antibiotics that is work only the bacteria. Okay, biotics B से होता है bacteria, that means we can say that the antibiotic this will be work only and only on the bacteria. So which kind of the medicine that will be affected or that will be work on the viruses? So that kind of the medicine we can say that the antiviral medicine. Okay, so this is the point that you must have to remember. So what is the antibiotics? So these are the chemical, or we can say that the medicine or the drug
that block biochemical pathway are important for the bacteria. See, here is a bacteria. Okay, so होता क्या है कि मान लो कि कोई जो बैक्टीरिया होता है वो अभी ग्रो हो रहा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसा मतलब ग्रो होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है वो क्या करेगा बेटा कि ये जो एंटीबायोटिक्स है जो उसका ये जो चेन है उसको वो टर्मिनेट कर देगा। दैट मीन्स कि अगर इसका जो ग्रो है वहाँ पर कुछ अभी चलती गाड़ी के बीच में ऐसा बड़ा सा पत्थर आ जाता है तो क्या होता है, दैट मीन्स कि हमको वो गाड़ी वहाँ पर रोक देनी पड़ती है। सो सिमिलरली ये जो चेन है उसका जो प्रोपोगेट कर रहा है इनिशिएशन से लेकर उसका जो प्रोपोगेशन चल रहा था, एंटीबायोटिक्स आके वहाँ पर क्या कर देगा, ये बड़ा सा पत्थर रोक देगा। और ड्यू टू दिस बिग स्टोन, ये जो मतलब कि उसका जो गाड़ी है दैट इज द प्रोपोगेशन की जो चेन है उसको वहाँ पर रोकना पड़ेगा। एंड दैट इज रीजन दैट द एंटीबायोटिक इज वर्क लाइक in this form. Okay, so antibiotic is the most important to terminate the process or the terminate the mechanisms or biochemical pathway of the bacteria. Then we can say that they are the used for disease caused bacteria. That means जो बैक्टीरिया से कॉज होने वाले डिजीज है उसके लिए क्या यूज होता है, दैट इज द एंटीबायोटिक्स. Okay, then the next topic we are going with, that is the inflammation. So what is the inflammation? So when active immune system releases many cells to the affected tissue to kill off the disease causing the microbes is called inflammation. Again beta we have going to talk about it again, that when the active immune system से क्या मतलब है मेरा कि जो हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, दैट मीन्स कि हमारे जो बॉडी गार्ड्स है, हमारे बॉडी के अंदर हमारे जो गार्ड्स है उसको हम बोलते हैं बॉडी गार्ड्स. सो वो क्या करेंगे, दे रिलीज मैनी सेल, वो बहुत सारे सेल को रिलीज करेंगे टू दी अफेक्टेड टिश्यू, मतलब कि जो अफेक्टेड टिश्यू है उसके टुवर्ड्स वहाँ पर बहुत सारे सेल को वो रिलीज करेंगे टू किल ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, मतलब कि जो माइक्रो जो बैक्टीरिया जो होते हैं, वायरस जो होते हैं उसके थ्रू मतलब कि ये जो डिजीज़ जो कॉज हुआ है उसको किल करने के लिए वो बहुत सारे सेल वहाँ पर रिलीज करेंगे. एंड दिस इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन. इज इट क्लियर? ओके, सो दैट इज नोन एज द inflammations. Now we are talking about the local effects causes on the body due to the inflammation. मतलब कि जो हमारे जो local effect जो होते हैं, local effect cause on the body due to inflammations are the swelling, pain, fever and redness. So that are the causes of the due to the inflammation, that is the swelling, pain, fever and redness. Now we are going to talking about the principle of treatment. कि that means कि इतने सारे डिजीज तो हो गए बच्चों, लेकिन उसका जो प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट का वो क्या होता है. सो प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटमेंट इज टू टाइप. दैट द फर्स्ट इज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज. दैट मीन्स कि हमें जो कुछ भी डिजीज जो है उसकी जो इफेक्ट है उसको हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं. कि जैसे जैसे वो रिड्यूस होती जाएगी हमारे अंदर के जो हमारे अंदर की जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, एंटीबॉडीज जो है हमारे, वो क्या करेगी, अगर इसकी इफेक्ट जो रिड्यूस हो गई है तो फिर उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को वो क्या कर देंगे, मार देंगे. सो दैट इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दिस ट्रीटमेंट. देन व्हाट इज द सेकंड प्रिंसिपल, कि अभी उसको हमको रिड्यूस करना ही नहीं है, वी आर गोइंग टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज. ठीक है, कि टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज लाइक, दैट इज किल द माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, फंजी एंड प्रोटोजुआ. ठीक है, मतलब कि जितने भी बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजुआ है, उसको हम क्या करते हैं, मार ही देते हैं भाई. चलो बात ही खत्म करते हैं. ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द प्रिवेंशन. ये तो बात हो गई भाई ट्रीटमेंट की, लेकिन अभी हमको ट्रीटमेंट चाहिए ही नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंशन इज द बेटर देन द क्योर. ओके, कि अभी हमको क्योर नहीं करना, उससे बेटर है कि हम प्रिवेंट करते हैं. भी कोरोना के अंदर जाने से बेहतर है कोरोना के अंदर ही नहीं जाए. क्यों हमको कोरोना को एक बार हमको वेलकम करना है, बाद में उसको ट्रीट करना है, नहीं भाई, हमको ऐसा करना ही नहीं. हम क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट कर लेते हैं. ठीक है, सो लेट मी टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द प्रिवेंशन, कि हम कैसे उसको प्रिवेंशन कर लेते हैं. सो देयर आर द टू मेथड. द फर्स्ट मेथड दैट इज द जनरल मेथड एंड द सेकंड मेथड दैट इज नोन एज द स्पेसिफिक मेथड. सो लेट मी टॉक अबाउट दी जनरल वेज, कि मतलब कि ऐसे कौन से वेज है उसके यूज से
हम उसको क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स कि प्रिवेंट कर सकते हैं. सो लेट मी टॉक अबाउट द जनरल वेज. सो द जनरल वेज आर रिलेटेड टू द प्रिवेंटिंग एक्सपोजर्स. Okay, so relate to preventing exposure. So prevention of the exposures can be done in the following ways. So first, that is known as the for airborne infections. So avoid the visiting public place, cover your nose and mouth while coughing. ओके सो मतलब कि आप कभी भी पब्लिक प्लेस में हो तो क्या करना है कि मतलब पहली तो बात ही है कि हमको पब्लिक प्लेसेस में जाना ही नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन डिजीज़ से मतलब कि सफ़र कर रहा है, कौन नहीं कर रहा. अगर ऐसे पर्सन के, ऐसे इंसान के हम कांटेक्ट में आते हैं, सो उस कांटेक्ट के थ्रू भी हमको वो डिजीज़ लग सकता है. अगर मान ही लो कि हम कांटेक्ट में भी नहीं आते उसके, ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि आप यहाँ पर खड़े हो और वो यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर अभी उसने स्नीजिंग किया तो मतलब कि ड्रॉपलेट्स जो मतलब कि उसके मुंह से बाहर तो निकलने ही वाले हैं. एंड ड्यू टू दैट ड्रॉपलेट दैट आर दी स्प्रेड बाय द एयर, मतलब कि एयर के थ्रू आपसे कहीं ना कहीं आपकी तरफ वो पहुंच ही जाएंगे. अगर आपकी तरफ वो पहुंच गए सो वो क्या होगा, वो आपके अंदर जाएंगे. एयर आपके अंदर जाने के बाद वहाँ पर आपको वो डिजीज़ भी हो सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू अवॉइड टू गो इन टू दी पब्लिक प्लेस. देन आफ्टर if you are going to public place, then the first and important thing that is cover your nose or mouth by the mask, by you can you can use the handkerchief. Okay, so जब भी आप पब्लिक प्लेस में जाते हो तो कंपलसरी बेटा उसको क्या करो, नोज और माउथ को आप कवर करो. देन और मोस्ट ऑफली आपको कवर कब करना है, जबकि आप क्या करते हो, कॉफिंग या स्नीजिंग करते हो, तब मोस्ट ऑफ आपको क्या करना होगा, आपके मुंह को और नोज को आपको कवर करना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है. देन द सेकंड थिंग वी हैव टू टॉक अबाउट दैट दी फॉर द वाटर बॉर्न इन्फेक्शन, कि अभी मान लो कि भाई पानी से जो इन्फेक्शन आ रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे. सो उसके लिए हमको क्या करना है बेटा, ड्रिंक क्लीन एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर. कि अभी हमको ऐसा मान लेते हैं कि भाई अभी चलो भाई मानसून का सीज़न है, ठीक है, तो अभी बारिश होगी. अभी बात हमें अभी जो रिसेंटली चल रहा है उसी वायरस की बात करते हैं, दैट इज़ द कोविड-19, ठीक है. कि अभी जो बारिश हो रही है उसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर ये वायरस लगा हुआ है. तो जब भी बारिश होगी तो क्या होगा, ये मान लो कि सपोज़ कि ये जो वायरस है वो बारिश के साथ साथ निकल जाएगा. हमने सोचा कि भाई चलो बारिश हो गई, वायरस वहाँ से चला गया, लेकिन वो जाएगा कहाँ, नदी तालाब, ठीक है, वहीं पर ही जाने वाला है ये वायरस, और वहाँ से पानी हमारे ही घर आता है भाई, ठीक है. अभी मान लेते हैं कि हम तो कहीं गए नहीं वायरस को लेने, हमको कैसे कोविड हो सकता है, लेकिन ये वायरस आपके घर खुद आ सकता है, ठीक है, विद दिस हेल्प ऑफ दिस रेन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर. सो बाय द मीन्स ऑफ दैट वी गेट दैट वायरस पर्टिकुलर. एंड ऐसा ना हो उसके लिए हमको क्या करना है बेटा, जब भी हम वाटर मतलब कि ड्रिंक करते हैं, कुछ भी पानी पीते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको क्लीन वाटर पीना चाहिए. अगर हमारे पास मतलब कि आरओ या क्लीनिंग सिस्टम कोई अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, देसी जुगाड़ जिसको हम बोलते हैं कि पानी को उबाला जाए, दैट इज द बॉयल द वाटर एंड देन आफ्टर यू कैन एबल टू ड्रिंक दैट वाटर. नाउ नेक्स्ट हम जाते हैं कि मतलब कि तीसरा वे कौन सा है. सो तीसरे वे की हम जो अगर बात करते हैं, सो थर्ड दैट इज दी फॉर दी वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस. सो कीप द सराउंडिंग क्लीन, डू नॉट कीप एनी puddle ऑफ द वाटर ओपन इन द सराउंडिंग्स एज इट अलाउ द ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज. कि मतलब कि अभी क्या होता है कि ऐसा कि मान लेते हैं कि हमारे घर के बाहर कहीं ना कहीं पानी भरा हुआ रहता है, ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं कि अगर वहाँ पर पानी जो भरा हुआ रहेगा तो वहाँ पर मॉस्किटोज आ जाएंगे बहुत सारे, उसमें से डेंगू भी हो सकता है, ठीक है, मलेरिया के भी मतलब दैट मीन्स कि दैट इज़ दी फीमेल एनाफिलिस भी हो सकता है. सो अगर वो मॉस्किटोज अगर हमको आकर बाइट करते हैं देन वी गेट दी सफ़र फ्रॉम द डेंगू और द मलेरिया that may be dangerous for the us. Okay, so that is keep in your mind बेटा कि आपको क्या करना है, पहले तो आपके जो घर के आसपास का जो कुछ भी जो सराउंडिंग है उसको आपको एकदम क्लीन रखना है. अगर चलो मान भी लेते कि अगर आप क्लीन नहीं रखते तो भी मेक श्योर कि वहाँ पर पानी जमा नहीं हो रहा है, किसी भी टाइप का वहाँ पर खड्डा या तो कुछ भी नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर पानी जमा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है बेटा बारिश का, तो वहाँ कहीं ना कहीं बहुत सारा पानी कुछ ना कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ पर वो पड़ा ही रहेगा. तो ऐसा ना हो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि पानी वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीत से वहाँ से निकल जाता है, ठीक है. देन आफ्टर बेटा
that the self immune system that can fight off and kill microbes when it enter our body। उसके बाद को हमारे पास देख क्या है, मतलब कि हमारा जो सेल्फ इम्यून सिस्टम है वो कहीं ना कहीं, जैसे वायरस होते हैं, माइक्रो बैक्टीरिया जो होता है, उसके सामने वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरह से फाइट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, उसको सपोर्ट करना है। अभी बोलेंगे कि अभी सर हम उसको कैसे सपोर्ट करें, तो बेटा उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे फूड हैं, जैसे कि अभी हम खा ही रहे हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे मेडिसिन आपको नहीं लेने हैं, मेडिसिन में भी इंजरियस टू बी योर हेल्थ। ओके, सो मेडिसिन से बेटर है कि हम हमारे जो आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है, नेचुरल ट्रीटमेंट है, उसका यूज़ करें। बहुत सारी औषधि हमारे आसपास में अवेलेबल है, जैसे तुलसी है, अदरक है, ठीक है। अदरक का बेटा ज़्यादा से ज़्यादा, लहसुन है, सो गार्लिक, ठीक है, उसका बहुत से बहुत ज़्यादा यूज़ करो बेटा, कि वो क्या है कि वो हमारे हेल्थ के लिए है बहुत ही, दैट मीन्स कि बहुत ही अच्छे होते हैं, कि वो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। एंड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ऑफ दैट इम्यून सिस्टम, जैसे कि हम जाते हैं कि इम्यून सिस्टम दैट कैन फाइट ऑफ एंड किल द माइक्रोब्स व्हेन इट एंटर टू आवर बॉडी। लेकिन ऐसा मान लो कि अब अगर हमारे इम्यून सिस्टम जो है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या होगा बेटा कि वो जो वायरस, जो दैट इज द माइक्रोब्स, जो वायरस, बैक्टीरिया, फंजा या कुछ भी होता है, वो हमारे बॉडी पे हैवी हो जाएगा। किस वजह से? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम कैसा है, लो है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए हाइजीन फूड खाना चाहिए, ठीक है। देन द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन, ठीक है, कि मतलब कि प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड लेना चाहिए और उसकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। सो दैट आर द जनरल वेज बाय विच वी कैन प्रिवेंट द डिजीज। ओके, सो मतलब कि कुछ भी होने से पहले हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट है बेटा, 5 पॉइंट, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने हैं आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि अभी जो क्राइसिस चल रहा है, आपके वहाँ से सफ़र कर रहे हो, अगर आपको ऐसा कुछ ना हो, आपके लिए भी आपको याद रखना है ये पॉइंट, और आपकी फैमिली के लिए भी आपको ये पॉइंट याद रखना है। सो कीप इट इन योर माइंड एंड फॉलो दैट 5 पॉइंट्स। ओके, देन द सेकंड वे दैट इज नोन एज द स्पेसिफिक वे। सो बाय द गिविंग द वैक्सीन, childhood immunization that is given to the children for the preventing infectious disease। सो मतलब कि जैसे भी किसी भी बच्चे का बॉर्न होता है, उसको क्या करते हैं, पहले वहाँ पर वैक्सीनेशन कराते हैं, उसका बहुत सारे, दैट इज ओरी का जो होता है। सो ऐसे बहुत से वैक्सीन जो होते हैं, टिटेनस जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे वैक्सीन जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर उसके 4 साल के अंदर अंदर बहुत सारे उसको वैक्सीनेशन किए जाते हैं। दैट इज़ कि मतलब कि वो पोलियो का भी वैक्सीनेशन जो होता है, मतलब कि पोलियो के जो ड्रॉप्स आप उसको पिलाते हैं, तो मतलब कि उसका पहले से ही उसका वैक्सीनेशन करवा देते हैं। सो दैट इज़ द स्पेसिफिक वे टू प्रिवेंटिंग दैट इन्फेक्शियस डिजीज। So that is all about our chapter number 13, that is why do we fall ill. So keep it in your mind that there are so many most important questions, that is the acute disease and the chronic disease, what is the disease basic condition for the good health and what is the मतलब कि good health, अगर जो health हमारा जो है तो healthy हम किसको बोलते हैं। So okay, so what is called to be the healthy persons, then causes of the infections, कि अगर बैक्टीरिया है तो उससे क्या कॉज होता है, देन उसके बाद अगर वायरस है तो वायरस क्या कॉज करता है, उसके बाद अगर जब वहाँ पर फंजी है तो फंजी से क्या कॉज होता है। सो दैट आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर एंड कीप इट इन योर माइंड एंड मेक इट क्लियर कि आपको कम्प्लीटली इस यूनिट के अंदर कुछ भी डाउट्स नहीं है। अगर किसी भी टाइप का आपको डाउट है तो यू कैन एबल टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 13 रिविजन। सो थैंक यू वेरी मच एंड डू योर वर्क रेगुलरली एंड बहुत सारी प्रिपरेशन करो। आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी बहुत से अच्छे प्रिपेयर रहो और विश यू वेरी 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 ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।